Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session I'm going to talk about NIFT exam, which is going to be held on 5th of February 2024. So in this session I'm going to talk about the previous year paper and the solutions, the important topics and questions, the write-ups, and some of the important questions related to two important topics. Also in this session I am going to give you the link of the mocks, so stay tuned. If you have not subscribed my channel, go and subscribe it, hit the bell icon for notifications, क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. So let's start with the previous year paper and the questions that I would love to discuss with you all, and that is the question number 1. Using the lines and shapes given below, design any one of the following shapes. Can be repeated any number of times and can also be increased, reduced, rotated to any scale or proportion. Now here, guys, first of all you have to understand the question and read the questions very carefully. These are the elements and the shapes which have been given. They can be repeated, they can be reduced, increased to any size in proportion. So using these shapes, they can be repeated also. So using these shapes, you are going to use them in an automobile, piece of utility or a weighing scale. तो ये तीन options आपको मिलते हैं. तो NIFT के एग्जाम में probably आपके 3 questions आएंगे जो कि हर साल आते हैं, and these 3 questions will have a 3 options also. So from them you're going to choose your which question you want to do. Now on this question, the solution, the possible solution which you can see on the screen is using these shapes, and these were the proposed shapes जो आपको दिए गए थे. इसको आप use करके a piece of utility have been made which is made for a barber. तो इस तरीके से you can color it, you can render it. Only line drawing is they are not going to work for NIFT. So आपको थोड़ा सा उसको shade out करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको realistic approach रखना पड़ेगा. So let's talk about the second question, and that is illustrate a comic strip black and white in the 4 given boxes with the story plot set in the COVID lockdown period using any one of the following listed characters. Now there are 3 listed characters here. From these 3 you're going to choose one. Now these characters you must be familiar of Akbar Birbal. आपने इनके stories पढ़े होंगे, comic strips देखे होंगे, तेनाली रमन and Vikram Betal, and this question was of 30 marks. So black and white ही करना है. You are not going to use the color. Obviously you can use fiber tip pens here. That is going to make your work easier. अगर आप स्टेडलर से करोगे तो वो इतना prominent शायद ना दिखे जितना better एक fiber tip pen दिखेगा. So you are allowed to use the dry mediums. So I am going to show you the proposed solution of this very question. You can see 2 solutions, one of Vikram Betal and the second one is of Akbar and Birbal. So these are the gestures and expressions you're going to take care. These are the dialogue boxes because it is asked in the question strip. So dialogue boxes and the dialogues are going to be of maybe 1 or 2 lines only, ज़्यादा lengthy नहीं होना चाहिए. And since the character was asked to sketch in black and white, so this can be the possible solution, and this is done by one of our students of Sanyukta Singh Studio. The name is Pragati and Pragya. So guys, you have done the work very good. Now let's come back to our third question of last year, creative, and the question was using the shapes given below, design any one of the following. You may alter the size of the shape and repeat the shape as many times. मतलब आप इसको cut भी कर सकते हो, आप इसको multiple times repeat भी कर सकते हो. नहीं, you do not slice the shape, मतलब आप इसको cut नहीं कर सकते हो. I'm sorry for what I said. आप इसको स्लाइस नहीं कर सकते हो, आप इसको रिपीट कर सकते हो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहो. एंड ऑल्टर द साइज, मतलब आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो. सपोर्ट योर डिजाइन विद द राइट अप ऑफ 70 वर्ड्स, and the areas are jug, make a jug or a nail cutter or a wind chime or a letter box or maybe a personal computer. So there were 5 options that were given, and from this आपको कोई एक choose करना था. तो मैं आपको एक इसका possible solution दिखा रही हूँ, which is this is a jug and the theme is vintage and luxurious. ये जग बनाया गया है, इसका थीम विंटेज था. शेप्स जो यूज किए हैं वो मेंशन किया गया है, कलर्स मेंशन किए गए. बट अगेन हियर देयर इज अ प्रॉब्लम. वेयर? राइट अप.
आप जब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सपोर्ट योर डिजाइन विथ अ राइट अप ऑफ 70 वर्ड्स। इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिजाइन इंस्पिरेशन। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स बोले गए हैं, विच इज जग, नेल कटर, विंड चाइम, लेटर बॉक्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरी बता दिया गया है। बट जब 70 वर्ड्स की राइटअप की हम बात करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, हमें वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड बनाना होता है। तो दैट्स वाई अगर ये जो जग है, इफ इट इज विंटेज, तो आपको विंटेज को थोड़ा एक्सप्लेन करना था। आप अलादीन से इंस्पायर्ड या उनकी कहानियों से इंस्पायर्ड भी जग्स बना सकते थे, एंड मे बी ये थोड़ा सा चिराग का एक लुक दे रहा है। तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर इंस्पिरेशन एंड द एलिमेंट्स यू हैव टेकन इन 50 वर्ड्स, एंड दीज आर नॉट 50 वर्ड्स। तो इस तरीके से यू हैव टू डू द राइट अप। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट what are you going to write in the write up part in later slides. So let's move forward, and on the basis of previous year sample paper, I would like to discuss some tips based on the previous year paper. And the first tip is practice in small boxes too. मतलब every time I have always said कि work according to the page, ठीक है। If you have got A4 size का पेज, at least do your artwork 5 to 6 inches. But many times you get the boxes already made on your paper. So इस बार जो प्रीवियस ईयर में जो बॉक्सेस आए थे निफ्ट के, वो बड़े ही छोटे आए थे। दे वर वेरी स्मॉल, मे बी 2 by 2 inches। तो छोटे बॉक्सेस में भी आप अपने कॉमिक स्ट्रिप को या फिर प्रोसेस ड्राइंग को या स्टोरी बोर्ड्स को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज छोटे बॉक्सेस की प्रैक्टिस नहीं होती है। एंड हाउ prominently you show the elements, that is very important. Practice questions from basic lines and shapes. Now I have already discussed many topics which are relevant to design field. It may be comic strips, storyboard, posters, stamps, scale up, scale down, conventional, unconventional designs. These topics are already present in our channel, but the questions that were asked last year were the basic questions, lines and shapes से पूछे गए थे, जिसको एक प्रोडक्ट डिजाइन पे भी डायरेक्ट कर दिया गया और डिजाइन इंस्पिरेशन भी एक टॉपिक उसमें मर्ज कर दिया गया। सो अल्टीमेटली यू एंडेड अप ड्रॉइंग अ प्रोडक्ट, और मे बी वो प्रोडक्ट किसी चीज से इंस्पायर्ड था, लेकिन आप बना तो प्रोडक्ट ही रहे थे, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द लाइन्स एंड शेप। तो ये बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। नाउ 3 hours 3 क्वेश्चन, ऑप्शन फॉर ईच, टाइम मैनेजमेंट। मतलब है इसका कि आपको 3 घंटे 3 क्वेश्चंस को देने होंगे, जो आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस तरीके से अभी से आपको इसका टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि आप 1 hour में एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओ विथ रेंडरिंग एंड शेडिंग, बिकॉज सिर्फ लाइन ड्रॉइंग पे आपको निफ्ट में मार्क्स नहीं मिलेगा। टॉक अबाउट डिजाइन इंस्पिरेशन क्लाइंट एरिया इन राइटअप। नाउ व्हाट टू राइट इन अ राइटअप। तो राइटअप हमेशा आप याद रखिए कि आप अपने इंस्पिरेशन की बात करते हैं, आप एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन से एरिया पे आपने उस थीम पे, उस इंस्पिरेशन पे काम किया है, उसको आप मेंशन करते हैं, देन यू शो योर फाइनल डिजाइन। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस विच यू मस्ट शो इन योर डिजाइंस। Now moving on, I would like to discuss the important topics for NIFT 2024. The first and the most important topic is process drawing, जो कि बैचलर्स इन डिजाइन एंड मास्टर्स ऑफ डिजाइन दोनों में आ जाता है। तो आप प्रोसेस ड्राइंग की तो प्रैक्टिस कर ही लो, बिकॉज देयर इज ओनली 1 month लेफ्ट। तो एक महीने में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट करें जो आपके लिए वो इतना रेलेवेंट हो जाए कि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओ। सो प्रोसेस ड्राइंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल ड्राइंग, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। द वीडियो इज इन माई डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड इन माई प्ले लिस्ट ऑल्सो, यू कैन गो एंड search for process drawing. You can also type process drawing or sequential drawing by Sanyukta Singh Studio. You will get the video. Second most important topic, futuristic design. Futuristic design can be related to services, can be related to products also. मतलब हो सकता है कि आपको futuristic umbrella डिजाइन करने को आ जाए, जो कि previously लिफ्ट में आ चुका है, वाटर बॉटल आ जाए, टिफिन बॉक्स आ जाए, बस स्टैंड आ जाए, या फिर कोई ऐसी सर्विस आ जाए जो फ्यूचर में कैसी होने वाली है उसके बारे में हो। इट कैन बी योर वेबिनार्स, जो कि एक बार आ चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव। यस, अगर कोई व्यू बनाने को आ जाता है इनसाइड अ हॉस्पिटल, इनसाइड अ जिम, इनसाइड अ मेट्रो और अ मार्केट प्लेस और अ हॉस्पिटल, तो वो 1 point से भी बनाया जा सकता है, 2 से भी बनाया जा सकता है, 3 से भी, एंड एक सिंपल कॉम्पोजिशन भी बनाया जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी
वैनिशिंग पॉइंट. सो कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आएगा इट इज गोइंग टू कम अप 40 मार्क्स. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टोरी बोर्ड एंड कॉमिक स्ट्रिप्स. स्टोरी बोर्ड, कॉमिक स्ट्रिप एंड प्रोसेस ड्राइंग आर वन ऑफ द टॉपिक्स जहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो या फिर वो बैचलर्स के लिए हो. द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोस्टर. नाउ पोस्टर्स में आपका एफर्मेशन पोस्टर आ सकता है, एडवर्टाइजिंग पोस्टर आ सकता है, इंफॉर्मेटिव पोस्टर आ सकता है, सब्जेक्ट एंड प्रोपेगेंडा पोस्टर्स भी आ सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीज? फॉर दिस, ये अगर आपको जानना है तो यू विल हैव टू गो टू माय प्लेलिस्ट एंड सी द पोस्टर्स वीडियो बाय संयुक्ता सिंह स्टूडियो. सो फॉर दैट, अगर आपको इतना डिफिकल्ट होता है कि आप प्लेलिस्ट में कैसे ढूंढो, तो आप उसको YouTube पे जाकर के टाइप कर सकते हो, पोस्टर्स बाय संयुक्ता सिंह स्टूडियो, यू विल गेट द होल सेशन. तो इसी तरीके से जो भी टॉपिक आपको चाहिए, यू कैन गो एंड सर्च दिस टॉपिक बाय संयुक्ता सिंह स्टूडियो, यू विल गेट whole video there. And the last and the most important topic is design inspiration. यहां से आपका indirectly questions आ जाता है. जैसे प्रीवियस ईयर थर्ड क्वेश्चन जो था आपका कि इन शेप्स को यूज करके आपको कोई जग या विंड चाइम बनाना है, तो दैट हैज टू बी डन ऑन रिलेटेड टू डिजाइन इंस्पिरेशन. कहीं से थीम लेकर के, इंस्पिरेशन लेकर के ही आपको उसको बनाना था. सो ये क्वेश्चन आपका किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन में, टेक्सटाइल रिलेटेड या फिर लाइन्स एंड शेप साइकोलॉजी, कहीं पे भी ये क्वेश्चन इसके साथ मिलकर के डिजाइन इंस्पिरेशन के साथ आ सकता है. नाउ ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू शो यू 2 सैम्पल क्वेश्चens for like not 2 but yes 4-5 sample questions related to one of the most important topic and that is process drawing. तो इसके 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पे questions दिख रहे होंगे. Through this video I just want to tell you all guys कि please आप इन topics को कर लो, प्रैक्टिस रिवाइज कर लो, एंड देयर इज अ नंबर विच इज बीइंग फ्लैश ऑन माय स्क्रीन. आप वहां पे अपने सॉल्यूशंस भेज सकते हो. वी आर गोइंग टू गाइड यू फॉर द सेम. तो मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस में से किसी 2 का अभी सॉल्यूशन दिखाती हूँ, एंड फ्रॉम दैट यू कैन practice and take a reference. So this is the question. प्रोसेस ड्राइंग का, शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चपाती इन 4 बॉक्सेस. आप यहाँ पे देख सकते हो. थोड़ा बहुत माइल्ड शेडिंग के साथ आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो. एंड प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ फ्रेश एप्पल टू रॉटन एप्पल, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी निफ्ट में आ चुका है, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर आई गेस. तो यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रोग्रेशन मतलब एक स्टेज के बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है. तो आपको भी अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है. नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजाइन इंस्पिरेशन से ये क्वेश्चन है, डेवलप रेंज ऑफ हैंडबैग्स फॉर द फॉलोइंग एरियाज. Number A for trekking, number 2 for festive occasions, number 3 for meeting and official use. Take a same inspiration for every area and design the range. Talk about the design concept in not more than 50 words. आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. टेक द सेम इंस्पिरेशन इट इज सेड. तो मतलब इंस्पिरेशन इज गोइंग टू बी सेम. मतलब अगर आप बटरफ्लाई एज अ इंस्पिरेशन ले रहे हो तो बटरफ्लाई से ही आप ये तीनों एरिया के बैग्स बनाओगे, चाहे वो ट्रैकिंग का हो, चाहे वो फेस्टिव ओकेजन का हो, चाहे वो किसी मीटिंग एंड ऑफिशियल यूज का हो. सो हियर यू कैन सी the trekking bag and the elements of inspiration is geometrical lines and shapes. तो मतलब geometrical lines and shapes को as a inspiration लिया गया है, और इसका client area है कि both male and females can use it for the area of trekking. Similarly, I'm sorry for this dot. Since it's not hindering the design, तो मैंने इसको नहीं हटाया है. It was like a mistake when I was making the presentation. So the festive occasion clutch आपको यहाँ दिख रहा होगा, again inspired from your geometrical shapes, and यहाँ पे भी geometrical shapes से inspired ये official and meeting के लिए बैग डिजाइन किया गया है. तो इस टाइप का अगर आपका through sketching, through mild coloring अगर आपका solution है, you are going to get good marks. Now there are few tips जो कि मैं आपको देना चाहूंगी. If you are going for a write up for anything, any design inspiration question, तो क्या क्या चीजों को आप मेंशन करोगे? The first most important thing which you are going to mention is your inspiration. तो जो भी आपका इंस्पिरेशन है, अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन दैट. इफ दैट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, डू टेक योर इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कैन बी बोथ tangible and intangible. The second most important thing is elements of the inspiration. So अगर आपने
ताजमहल एज अ इंस्पिरेशन लिया है, तो ताजमहल के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? उसका मीनार हो सकता है, उसका आर्किटेक्चर हो सकता है, उसके वाइट मार्बल्स हो सकते हैं, तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए, तो आप उसके एलिमेंट्स को मेंशन करते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिमेंट्स यू हैव चोजन टू कैरी फॉरवर्ड योर डिजाइन। तो एलिमेंट्स चोजन, हो सकता है कि आपने ताजमहल के शेप पे काम करना सोचा हो तो आपने शेप मेंशन कर दिया। अगर आपने आर्किटेक्चर एंड वॉल पेंटिंग्स पे काम करना सोचा है तो यू मेंशनड वॉल पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एंड देन यू हैव कैरीड योर डिजाइन फॉरवर्ड। तो एलिमेंट्स चोजन मेंशन करते हैं। एंड फोर्थ में योर डिजाइन, जो भी आपका डिजाइन है उसकी स्केच आप करोगे। एंड लास्टली द क्लाइंट और द एरिया, मतलब अगर आपने कोई हैंडबैग बनाया है तो हु इज गोइंग टू बाय दैट हैंडबैग? मिडिल क्लास लेने वाला है या एलीट क्लास लेने वाला है या लोअर मिडिल क्लास के लिए आपने बनाया है? तो जस्ट यू आर गोइंग टू मेंशन द एरिया और द क्लाइंट हु इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। सो डिटेल्ड सेशन ऑन डिजाइन इंस्पिरेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन माई चैनल यूट्यूब पे, संयुक्ता सिंह स्टूडियो पे। यू कैन गो एंड you can see that session and you are going to learn a lot. So kindly visit the whole playlist and you will get everything on my channel. Every topic has been explained very beautifully. Yes, so that was it for important tips and write-up. Now I would like to talk about the mocks for NIFT 2024. In the description the link has been link is provided there. From there you can go and give the mocks or you can buy the mocks also. So mocks for NIFT 2024 is available on my website also. You can log into www.sanyuktadesign.com and from there also you can buy the study material and mocks. Also you can go into my description and the link is provided there. From there also you can buy mocks for NIFT 2024. So that was it guys for today's session. I hope you liked the session, and if you have any doubt or if you want to come up with questions, you are most welcome. You can get connected on @SS Design House, which is my Instagram ID. Also if you want, you can come to the comment section and you can put up your queries there or your topics there, and I would be discussing those topics in the upcoming session. So just for your notice, I want to tell you all that everything has been put up in the description of this video, be it the study material or the mocks or the classes for the crash course or for the new session 2025. You can come and get yourself registered from there. You can also visit my website or you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen, and we are happy to help you all. So that's all guys. Take care. All the best.